Sir, can we achieve zero friction in a vacuum? Yeah, if, in a vacuum. Abhinav, good evening. If there is vacuum, there is zero Good evening, sir. friction. Good evening, Abhinav. Zero, there is zero friction. Friction. So this is what happens now. I tell you one thing, very interesting thing. I'll tell you. If you want to escape the Earth, if you want to escape the Earth, Tasmiya, good evening. तो क्वेश्चन पूछा अर्नव ने कि सर कैन वी अचीव जीरो फ्रिक्शन इन वैक्यूम और स्पेस? यस, इट इज देयर. So what happens is, if you want to leave Earth, you have to fire a rocket which should have at least around 7 mile per second speed. If your rocket has got this speed, Earth's gravity will not be able to pull it back. If it is less than that, it will come back. If it is more than that, it will go in the space. And once it has gone to the space, nothing can stop it except asteroid fight or something, hit or something. Arnav, no, Arnav. Okay, sir. Right, guys. Let's go ahead. तो कल जहां छोड़ा था उससे आगे चलते. Okay. No, I'm not writing class because I'm making this video for all the classes. कल वाला वीडियो अपलोड नहीं किया मैंने, अब तक हो नहीं पाया एक्चुअली, मेरे को टाइम लगा. अभी आज हो जाएगा अपलोड. आज दोनों ही हो जाएंगे. ह्यूमन, क्या लिखा था मैंने? ह्यूमंस, The story of human. द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस. ऑल राइट, शिव भी आ गया. ओके, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग शिव. द स्टोरी ऑफ, गीला हो गया ना, बिकम वेट, ह्यूमंस. ऑल राइट गाइस, चलो करते हैं, जल्दी चलते हैं. इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ह्यूमंस की कि एक भी पासा गलत पड़ जाता, एक भी टर्न गलत हो जाता, वी वुड नॉट बी हियर. ओके, राइट. सो फिश बन गए हम लोग. और अभी क्या हो गया, मैंने बताया 300. सो साइबेरिया के अंदर वोल्केनो आ गया, और वोल्केनो आने के बाद, ओके, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर. So 250 million years ago, which I am writing MYA. Okay. Volcano eruption. Volcano eruption in Siberia. Area covered in lava, equal to USA, and 1000 feet deep. What happens? 95% of all species die. 95% of all species die. Main survivors. Main survivor 2. Human ancestor. Okay, and human ancestor looks like what? And this has happened after 30 million years. 30 million years. Every time I tell you what is the value of 30 million years. 30 million years matlab 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? Yeah, 6. इतने साल के बाद क्या सिचुएशन है? अभी सिचुएशन क्या है 220 में? 220 million years ago, human ancestor is a cat like, and ह्यूमन एंसेस्टर को फाइट देने के लिए कौन है? श्रीका, गुड इवनिंग.
ह्यूमन एंसेस्टर को फाइट देने के लिए कौन है? डायनासोरस का छोटा पार्ट, डायनो स्मॉल बट। ठीक है, ये है 5 फीट टॉल है, 5 फीट टॉल एंड हंग्री। Actually, we have to be very, very thankful to dinosaurs. Dinosaurs were main reason why we became what we are. We'll just see. I'll just explain this to you. How? Right, guys. Let's see how. Deep. This is because high temperature. All vegetation dies. Okay. This is Actonian. And this is called Tyrannosaur. सौर वर्ड आता है, डायनासोर का जो पार्ट होता है सौर होता है, सोरस नहीं होता, सौर, डायनासोरस। ओके, हेरानोसोर। ओके, अब ये बंदा इसके पीछे पड़ गया बिकॉज ही इज हंग्री, सो ही वांट्स टू किल। नाउ दिस गाय इज ए प्रे and he is a predator. Okay, what is the option left with the human ancestor now? Human ancestor has to hide. So what does it do to hide? Becomes smaller, goes into dark spaces, नीचे जमीन के नीचे कहीं कहीं जहां भी डार्क मिल रही स्पेसिफिक है। ऑल राइट, एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, a very long time, such a long time that from 220 million years we are now down to 65 million years, 66 million years ago. 66 million years ago we are around 2 inches and we have something called shrew. Shrew is a small mouse type. We are a small mouse now, but we are cold, we are scared. Now to fight the cold, what happens is that our skin muscle contract and hair stand up on skin. So even today when you are in cold, your hair will rise, ऐसे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं इसको बोलते हैं। और when you are scared, किसी ने पीछे एकदम से डरा दिया आपको, तो एकदम से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। So that is the biological leftover. So this is the bio leftover today. This happens even today. All right, now this guy is scared also, so he's always getting smarter to avoid being eaten by large dinos. Dinos बड़े हैं, तगड़े हैं, डरते नहीं किसी से, उनका राज चल रहा है पूरी अर्थ पे, और ये बेचारा डर के रह रहा है।
तो इसमें क्या हो रहा है, जब when he is getting smarter, there are certain things which are improving. What are the things which are improving? Let us have a look. So first is better senses. Better senses. Better senses में क्या है? Sharper hearing. Sharp hearing. Ability to see in the dark. So actually this guy is now nocturnal. You know what is the meaning of nocturnal? Anybody knows the meaning of nocturnal? The creatures which move around at night. Nocturnal है. Sharp hearing, sharp sight. And at this point of time, during all these thousands of years, we start developing something called neocortex. किसी ने नाम सुना neocortex में? Neocortex. I'll tell you what is neocortex. Human skull के अंदर ना, ये जो पार्ट है आगे का पार्ट, दिस इज कॉल्ड नियोकॉर्टेक्स. ये सब हमारा होता है. मंकी वगैरह का भी होता है थोड़ा बहुत, देखना वो लेकिन पीछे की तरफ झुका होता है. और हमारे यहाँ बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि जिसका माथा जितना चौड़ा होगा वो बंदा उतना बड़ा विद्वान होगा, उतना बड़ा लर्नेड पर्सन होगा, उतना उतना इंटेलिजेंट होगा. ये यहाँ जो है ना, दिस इज दिस सेंटर ऑफ थिंकिंग, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, सिचुएशन क्रिएशन, ये यहाँ है सब. सो नियोकॉर्टेक्स डेवलप्स. And now this guy can analyze situations. Analyze situations. See, you must understand one difference between humans and animals. Animals do very little thinking. Generally their life is governed by instincts. भूख लगी तो खा लिया किसी को मार के, भूख लगी तो खास खा ली, तो सो गए, फिर पॉटी कर दिया जहाँ पे है. उसके बाद टाइम आया उनके बॉडी साइकिल का, तो रिप्रोड्यूस कर दिया, बेबी बन गया नया. उनका सब कुछ चलता है लाइक इंस्टिंक्ट से. कोई कुत्ता ऐसा सोचता नहीं होगा, कोई डॉग ऐसा सोचता होगा यार वेयर विल बी आफ्टर 5 years. ऐसे जनरली ना ह्यूमंस सोचते हैं व्हाट विल बी आफ्टर 5 years, वेयर विल आई बी 5 years फ्रॉम नाउ. कौन सोचता है? कौन कुत्ता सोचता होगा? कुत्ता ये भी सोचता होगा साला कि अगले एक घंटे बाद मेरा क्या होगा. उसको जहाँ खाना मिला खा लिया, पेट भरा हुआ है, सामने खाना पड़ा हुआ है, नहीं खाएगा. उसमें इतना दिमाग नहीं, उसको साइड कर लूं थोड़ा सा, बाद में जरूरत पड़ी झाड़ियों में छुपा दो, बाद में जरूरत पड़ेगी. नहीं है ह्यूमंस में. कहां से आया? यहां से आया. neocortex does this. neocortex can create new situations. तो अब जो हमारा ये एंसेस्टर है डर के भाग रहा है, ये सारे डायनासोर से भाग रहा है, छुप गया है नीचे, नॉक्टर्नल बन गया है, रात में घूमता है, चुपचाप सांस लेता है, कुछ मिल गया कीड़े काड़े खा रहा है, किस तरह से बच रहा है. और इसी वजह से इसकी बेटर सेंसेस, शार्प हियरिंग, शार्प साइट, नियोकॉर्टेक्स डेवलप हो रही है, ब्रेन डेवलप हो रहा है. नियोकॉर्टेक्स है ये पार्ट, ये थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड. Arshia, good evening. Good evening, sir. Okay. Now, for all this achievement, dinosaurs should be thanked. Dinosaurs, thanks. क्योंकि तुम नहीं होते तो हम आज भी वही अंडे बाहर ले करते रहते. आज हम आज भी वही होते. ठीक है. Okay. Now, another thing that it is done is, okay, another thing it does is that it is now scared. It cannot lay its eggs in open. So eggs in open are eaten by dino. Eaten by dino. अब क्या करें? अब बच्चे को पेट में रखना पड़ेगा अपने. सो पहले अब तक एग ले हो रहे थे, सब लोग एग ले कर रहे थे, अंडे बाहर आते थे, उसके बाद उसमें बच्चे निकलते थे. बाय द वे, डोंट कंफ्यूज बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटर फर्टिलाइजेशन. एग वाला मामला जो है, फिशेज का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, फ्रॉग्स का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, लेकिन रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का फर्टिलाइजेशन तो अंदर ही हो रहा है, बट दे ले एग्स. ओके, सो
Eggs in open are now are eaten by dinos or other creatures and predators. So now, what does the human ancestor has to do? The human ancestor has to now develop the baby inside the body. इनसाइड बॉडी के अंदर ही बच्चे को डेवलप करना पड़ेगा. और जब वो बच्चा पैदा होगा तो उसको नर्चर करना पड़ेगा, उसको दूध पिलाना पड़ेगा, मिल्क देना पड़ेगा उसको. तो आफ्टर बर्थ नर्चर द बेबी विद मिल्क. मिल्क कहां से आया भैया? ये मिल्क कहां से आ गया? आज तक तो किसी को मिल्क पिलाने की फैसिलिटी थी नहीं, ना पीने की थी ना पिलाने की. ना फिशेज ने आज तक पिलाया, ना एम्फीबियंस ने पिलाया, ना रेप्टाइल्स ने पिलाया, ना बर्ड्स ने पिलाया. किसने पिलाया? ह्यूमन एंसेस्टर ने पिलाया. कैसे? कि ये जो इनकी स्किन सेल है, स्किन सेल जो थी हमारी स्किन सेल, अभी जब इस चैप्टर का जो कंटिन्यू करूंगा, जब तुम्हें मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ डू बेबीज गेट मिल्क. थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे. सो स्किन सेल्स ही म्यूटेट हो जाती हैं, इवॉल्व हो जाती हैं मेमोरी ग्लैंड्स में. स्किन सेल्स इवॉल्व into mammary gland, MAMARY, and produce milk. Female is now producing milk, and this is the new species called mammals. MAMALS. Mammals arrive on earth. ठीक, यहां तक का कोई डाउट बताओ? सो फॉर सो गुड. अर्णव, कोई डाउट नहीं? समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके, चलो जल्दी जल्दी आगे चलते, बिकॉज आई एम श्योर you guys are getting the hint now, getting the gist of the story. Okay. Okay. Sorry. Now mammals will branch out. So mammals branch out into more than 4,000 species. Who among them? Majorly. So it could be a small mouse, जो हम लोग थे उस वक्त, or it could be a human, it could be a whale. Okay, so far, right? So dinosaurs are ruling the earth. Dinosaurs are ruling the earth, and this is what we are talking about around 65, 66, 65 million years ago. Dinos rule the earth because there are so many types, and there are so many various kind of huge in size. Nobody can fight them, right? But then something happens. Okay. Now, generally, this area, whatever the fossils have been found, there's a place in USA, America. It's called Montana.
Montana stayed there. So all this was happening in Montana forest and other places also. Everywhere else this must be happening. Now, around 65 million years ago, in a place called Mexico. Everybody knows where is Mexico? Guys, you know where is Mexico? ना location तो पता है सबको Mexico की. Yes, sir. In Mexico, there is a place called Yucatan Peninsula. There comes in huge asteroid. Huge asteroid. And by impact, great amounts of dust rise. Sky is dark. Sky is dark. Now what happens? Sky is dark. Low temperature. So as a result of low temperatures, vegetation starts to die. Vegetation starts to die. Right. If vegetation dies, who dies next? Vegetation eaters. Vegetation eaters die. Who dies next? Carnivores die next. Why? Dinos are huge. Dinos are huge and their appetite is huge. वैसे उनकी भूख भी तगड़ी है क्योंकि इतने बड़ी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, इतने बड़ी बॉडी को चलाने के लिए भाई खाना भी तो बहुत चाहिए. Appetite is huge. No food. Dinos die out. सारे मर गए डायनोस. सारे डायनोस मर गए. ओके. बट ऐसा कहते कॉकरोच कभी नहीं मरते. ये जमीन के नीचे जो रहने वाले इंसेक्ट्स होते हैं ना, ये बहुत मुश्किल से मरते हैं. इनको मारना बहुत मुश्किल है. Surviving insects eat dead dino. और ह्यूमन एंसेस्टर क्या था अभी? चूहा टाइप का था ना, माउस. ह्यूमन एंसेस्टर श्रू और माउस और रैट, whatever you call it, eat insects. Now there is nothing on earth to eat. No vegetation, nothing. एक चीज बच रही है, वो कीड़े. तो अगली बार कोई कॉकरोच नजर आए ना, मारने से पहले थैंक यू बोल देना उसको कि भैया तुम्हारी वजह से हमारे एंसेस्टर जिंदा रहे और तुम्हारी वजह से फिर आज हम जिंदा है. Okay. So, total twist in the story. Empire of dinos
is inherited. इतने बड़े बड़े डायनासोर, इतने मेजर डायनासोर, मेगा डायनासोर्स, उनका एम्पायर किसने इनहेरिट किया? इनहेरिटेड बाय ह्यूमन एंसेस्टर्स। तो हो गया। ओके, अब हम कहां पे पहुंचे? अब हम आगे, क्योंकि 65 मिलियन ईयर्स में ये हुआ है। अब 1 मिलियन ईयर के बाद क्या सिचुएशन है? आफ्टर 1 मिलियन ईयर्स, अगेन 6 जीरोस। ध्यान रखना, ये चीजें इतनी जल्दी नहीं हो रही हैं, इतना टाइम लगता है इनको होने में। ठीक है, नाउ वी आर, क्योंकि खाना वाना ठीक से मिल रहा है, उतना खतरा नहीं है, तो वी आर क्रीचर विच इज अराउंड 6 इंचेस लॉन्ग, एंड इसका नाम है परजेटोरियस। परजेटोरियस नाम है, 6 inches long, and it looks like a squirrel, kind of a mouse squirrel. अब कोई खतरा नहीं है, अब सब बल्ले बल्ले, डायनासोर मर गए, अपनी है बस। ओके, और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो मैमल्स हैं, ये जो ह्यूमन एम्पायर है, ह्यूमन एंसेस्टर जो कि मैमल बना हुआ है, अब ये ब्रांच आउट होना शुरू हो जाएगा, 4 एक कॉन्टिनेंट में फैलना शुरू करे। तुम्हें पता है इस वक्त तक कॉन्टिनेंट भी बट रहे थे, टूट रहे थे कॉन्टिनेंट्स, है? बाद में कॉन्टिनेंट्स की भी थोड़ा टाइमलाइन बताऊंगा। ओके, सो mammals dominate and spread out. ये स्प्रेड आउट कर रहे हैं भैया, ठीक है। 4 मिलियन ईयर्स बीत गए। अब क्या सिचुएशन है? हम अभी 60 मिलियन ईयर्स पे हैं, और नाउ देयर आर फ्रूट्स ऑन द ट्रीज। वो जो डस्ट वस्ट थी सब खत्म हो गई, मौसम सही हो गया, so there are fruits on the trees, और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, another 4 million years they evolve, human ancestor evolve to climb trees. Now one point you have to understand here, that ये जो पेड़ पे चढ़ने वाला क्रीचर है ना, ये मंकी नहीं है, it is more like a squirrel, so it is squirrel like. लॉन्ग टेल है इसकी, और ये स्क्विरल लाइक है। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके सो फार, श्रेया? Yes, sir. बन रही है, सेंस बन रही है? Yes, sir. Okay, go ahead. So mammals are now spread everywhere, and they are now living on trees. They are eating fruits, they are eating seeds, and generally the population of mammals is increasing. Next. So 56 million years ago, human ancestor is like a squirrel. Okay, squirrel like, and it is called Alti. The scientific name for it is Alti atlassius.
LT atlas. This is the name of this creature. This is the first primate. Okay. Now for next 10 million years, the climate changes a lot. Lots of climate changes. Lots of climate changes. And it starts to get cold. फॉरेस्ट श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं. फॉरेस्ट श्रिंक and food shortage comes. Forest shrink, food shortage. Now what happens is the tail starts shrinking. Tail shrinks, and as we are aware, today it is in the fish, is there in our body the shape of coccyx. Sir, yes. टेल बोन जो है ना हमारी, जो हमारी Sorry, sir. स्पाइन है, अरे अर्षा, टेल बोन जो है उसमें बिल्कुल लास्ट में आके छोटे से बच गई है हमारी. ओके. और अब क्या हुआ, इनको एक पेड़ से काम नहीं चल रहा, अब इनको क्या करना है. 17 मिलियन ईयर्स अगो टेल स्टार्ट्स बिकमिंग लेसर and we turn from squirrel to monkey. 56 से शुरू किया, वेदर चेंज हो रहा धीरे धीरे धीरे. 70 मिलियन ईयर्स आते आते ह्यूमन एंसेस्टर्स आर नाउ लुकिंग लाइक ए monkey. And now there is something great happening. If you remember I said they starts the continent Pangea is now pulling apart in different plates. Okay, and around this time, Africa and Arabian plates they separate. All right. Now what is the result of this? ये जो मंकी बैठा हुआ है, खा रहा था, अपना मजे ले रहा था, इसकी लाइफ में थोड़ा सा टेंशन आने वाली है. बिकॉज दो प्लेट एक दूसरे से अलग हुई. सो ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर, मैं मैप वगैरह बाद में दिखा दूंगा, अभी टाइम थोड़ा सा कम है. ईस्ट अफ्रीका, ओके, एवरीबडी नोज द जनरल लोकेशन. अफ्रीका इज लाइक दिस, राइट, एंड हियर इज योर अरेबिया. यहाँ पे इजराइल है सारे, जॉर्डन है, इजराइल है, अरेबिया है, इधर एशिया है सब, राइट. सो और यहाँ पे इंडिया है कहीं हमारा, समवेयर हियर द इंडिया विल बी देयर. ठीक से बनाता हूँ. यह कहीं इंडिया. ओके, सो अफ्रीका के अंदर यहां मेडागास्कर है. अफ्रीका के अंदर यहां से विंड्स आती थी और जो रेन्स लेके आती थी अफ्रीका के अंदर. हुआ क्या, जब भी आगे जब प्लेट्स का मूवमेंट हुआ, तो ये ईस्टर्न पार्ट के अंदर कुछ लैंड नीचे चली गई और कुछ उठ गई. दिस कॉल्ड रिफ्ट. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ रिफ्ट वैली. Sutlej and Tapti in India, they flow in rift valleys. Rift valley. Okay, so rift valley is created and it is in the East Africa, and as a result of that, this is called Gregory Rift. As a result of this, a new range of mountains, thousands
of kilometers long mountain range. And this is called Eastern Rift Mountains. These are called Eastern Rift Mountains. और इसके ऊपर एक बहुत फेमस माउंटेन है, इसका नाम है माउंट काली मन जारो। एक पिक्चर आई थी रोबोट, रजनीकांत और ऐश्वर्या राय की। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव सीन दैट। कितने लोगों ने देखी वो पिक्चर? देखी किसी ने? रोबोट। सर मैंने बहुत पहले देखी थी जब मैं बहुत छोटी थी। सर मैंने देखी है सर। देखिए उस मूवी के अंदर एक गाना है जो कि वहां शूट हुआ है, पहाड़ों पे शूट हुआ है ना, वो काली बंजारों में शूट हुआ है। ओके, तो तुम बोलोगे सर ये हमें क्या लेना देना, हमारे एंसेस्टर को क्या टेंशन हो रखी है इस माउंटेन बनने से? टेंशन अब ये हो गई कि यहाँ जो जितने जितने जो माउंटेन थे, फॉरेस्ट थे, अच्छे अच्छे खुले हुए थे, बढ़िया तरह से चल रहे थे, यहाँ पे बारिश कम होगी, तो लेस और नो रेन। और हमारे एंसेस्टर जो कि बढ़िया पेड़ के ऊपर बैठ के खाते रहते थे फ्रूट, इधर हाथ बढ़ाया फ्रूट खा लिया, उधर हाथ बढ़ाया फ्रूट खा लिया, मजे ले रहे थे, इनको क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गई। सो ह्यूमन एंसेस्टर, ओके, जो कि अभी मंकी लाइक हो गया था। तुम देखोगे मंकी के, चिंपैंजीज की जो हैंड है ना, वो 5 उंगली ऐसी, दे आर मेड टू रैप देयर हैंड अराउंड अ ब्रांच सो दैट दे कैन वॉक ऑन द ब्रांच। और उनके पैर भी ऐसे होते हैं, पैरों से ब्रांच को पकड़ लेते हैं, लोग चलते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली पेड़ों पर रहने के लिए बने थे, दे वर मेंट टू स्टे ऑन द जी, ओके। नाउ ह्यूमन एंसेस्टर माउंटेन मंकी लाइक, okay, how do we put it, further apart food skills, okay. Monkey like finds trees are now lesser and away from each other, away from each other। तो दोस्तों होगा क्या, जब बहुत सारे पेड़ थे, इस पेड़ से उस पेड़ पे जंप मारी, इस पेड़ से उस पेड़ पे जंप मारी, खाओ बढ़िया चल रहा, नीचे आने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब तो भैया एक पेड़ यहाँ पे, एक पेड़ वहां पे, यू विल हैव टू कम डाउन इफ यू वांट टू ईट। इस फ्रूट, इस पेड़ के फ्रूट खत्म हो गए, अभी उस पे जाने का है। ओके, सो अभी इस वक्त पे हम क्या है, हमारी सिचुएशन देखो। अब जो बात चल रही है, दिस इज अराउंड 4.4 मिलियन ईयर्स, ओके। एंड ह्यूमन एंसेस्टर क्या चीज है? अभी ह्यूमन एंसेस्टर एक कॉम्प्लेक्स प्राइमेट है, काफी सारी चीजें उसको आती हैं करनी, काफी चीजें कर सकता है। और क्या बाकी क्या क्या हिसाब किताब है, क्या क्या साइज है, देख लेते हैं। ह्यूमन एंसेस्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है अभी, कितने साल पहले? 4.4 मिलियन ईयर्स अगो, 4.4 मिलियन ईयर्स अगो। क्या कैरेक्टरिस्टिक है हमारी? हम तकरीबन 4 फीट टॉल है, ठीक है। जनरल वेट इज 80 पाउंड्स, और हमारा जो ब्रेन साइज है ऑरेंज के बराबर है। ये स्टेटस है अभी, जब ये बंदे को अभी पेड़ से नीचे उतरना है इसे, क्योंकि इसका पेट भर नहीं भर रहा, फ्रूट जितने थे सब खत्म हो गए, अब उस पेड़ से उतर के दूसरे पेड़ पे जाने का है, ठीक, ओके। और अब तक कितना एवोल्यूशन कंप्लीट हो गया? 3 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन completed almost. What next now? And this will change everything. अब तक क्या कर रहे थे? पेड़ के ऊपर ऐसे खड़े होते थे, इस पेड़ से उस पेड़ पे चलेगी, उस पेड़ से उस पेड़ पे चलेगी, उस पेड़ से उस स्ट्रेच करके उधर चलेगी, ऐसे चल रहा था काम। लेकिन अब नहीं,
नाउ ह्यूमन एंसेस्टर कम्स डाउन एंड ये एकदम से नहीं हो गया, बहुत सालों सैकड़ों साल लगे, कितने लोग मर गए होंगे, उतरे ही नहीं होंगे पेड़ से, या एक पेड़ से नीचे नीचे डर के मारे उतरे नहीं होंगे, भूखे मर गए होंगे. सो कम्स डाउन आफ्टर thousands of years. अब जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाना है, यहां पेड़ है और यहां पेड़ पे जाना है, तो क्या ऐसे करके जाएगा, फोर लेग पे जाएगा, फोर लेग पे जाएगा तो टाइम लगेगा, और दूसरा वहां पहुंचने के बाद उसको वहां से फ्रूट भी तो तोड़ने पड़ेंगे इधर. सो ह्यूमंस स्टार्टेड टू वॉक ऑन टू लेग्स, starts to walk on two legs. एंड हैंड किस लिए यूज करेगा अभी, प्लक करने के लिए, तोड़ने के लिए. हैंड्स टू प्लक फ्रूट्स, हैंड्स टू प्लक फ्रूट्स, ये कर रहा बंदा अभी. ओके, और इसका साइंटिस्ट ने जो नाम दिया इस क्रीचर को, दैट इज कॉल्ड आर्टिपिथिकस. आर्टिपिथिकस, ये स्टेटस है भाई. ओके, अब हम चलते हैं. नाउ आर्टिपिथिकस हैज गॉट ए न्यू थिंग अबाउट हिम. Arnav, any doubt? Ritvik Chandel? No, sir. Okay. Right. So, Ardipithecus has a strange thing about him. 1.2 million years ago. Ardipithecus. What does it do? Whatever it does, children are learning. So children, for the first time, learn from parents. Okay. Okay. Now, where is the main focus at this point of time? At this point of time, focus is walking. कितना दूर चल सकता है? इधर एक पेड़ था, उसके खा लिए, उसके बाद अगले पेड़ पे, फिर अगले पेड़ पे, जितना चल रहा है उतना फूड मिल रहा है, यानी कि जितना ज्यादा चलेगा उतना फूड उसको बढ़ता जा रहा है, मिलता जा रहा है. ओके, सो हाँ, इवॉल्व टू वॉक फर्दर. अब वॉक फर्दर में क्या हो रहा है, एंड फास्टर. वॉक फर्दर में क्या हो रहा है, अच्छा फास्टर किस लिए, फॉर फूड, शेल्टर एंड मेटिंग, टू फाइंड ए पार्टनर. अच्छा, इसमें दिक्कत क्या हो रही है दोस्तों, अब दिक्कत ये हो रही है कि पहले बो लेग थे, पहले बो लेग थे, bow legs are now replaced by straight legs. पर इसका एक नुकसान हो गया. इसका नुकसान क्या हुआ, दिस इज समथिंग कॉल्ड पैलेस गर्डल. लुक एट मी,
this part, this entire part na yahan se yahan tak, this part is called pelvis girdle. So it has got your front genitalia, it has got your buttocks, and this particular area. Now what is happening is, since he has to walk so much, so the buttock muscles has to push him forward like this, right? Yes, forward, and this has to become straighter. So this area which was earlier bigger now becomes smaller. This is called pelvic area or pelvis. So अब उसका नुकसान तुम लोगों को, बच्चों को नहीं समझ में आएगा, तो मैं समझा रहा हूं. देखो क्या नुकसान है इसका. पेल्विस इज नाउ स्मॉलर. ठीक है, होने दो. हमें क्या नुकसान है? नुकसान है. तो क्या नुकसान है? देखो, पहले जो एनिमल्स थे, दे यूज्ड टू गिव बर्थ टू अ वेल डेवलप्ड चाइल्ड, वेल बॉर्न, अच्छे से डेवलप हो चुका था. सो नाउ फॉर ह्यूमन एंसेस्टर, चाइल्ड बर्थ इज डिफिकल्ट. पहली बात. दूसरी बात, मैं हमेशा बोलता हूं, ह्यूमन रेस को यहां तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अगर कहा जाए ना सीधे तौर पे, तो विमेन का है. कैसे? देखो, चाइल्ड बर्थ इज डिफिकल्ट ड्यू टू स्मॉलर पेल्विस, एंड जैसे जैसे ह्यूमंस बड़े हो रहे, डेवलप हो रहे, उनका ब्रेन बढ़ रहा है. तो उनका सर बढ़ रहा है. एंड अगर जितना बड़ा सर होगा, द चाइल्ड विल बी मोर डिफिकल्ट बाय द मदर टू बी पुश्ड आउट ऑफ हर बॉडी. जब मदर की बॉडी से बच्चा निकलेगा, जितना बड़ा उसका सर होगा, मदर को उतना पेन होगा, उतना ही डिफिकल्टी होगी मदर को उसको पुश आउट करने में. सो चाइल्ड बर्थ इज डिफिकल्ट ड्यू टू स्मॉलर पेल्विस एंड लार्जर हेड. अगर हमारा सर भी छोटा होता ना, मंकी की तरह, बंदर, हमारे वहां को शायद तकलीफ नहीं होती बच्चे को जन्म देने में, लेकिन हमारे हेड बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे. सो लार्जर हेड. ऑप्शन क्या है? व्हाट इज ऑप्शन विद ह्यूमंस और द ह्यूमन एंसेस्टर्स? सो द ऑप्शन इज अर्लियर बर्थ ऑफ बेबी. और अभी बेबी आपका अंडर डेवलप्ड है. जिन लोगों ने जो बच्चे पैदा हुए थे, नए नए बच्चे छोटे छोटे से, उनको देखा होगा, ऐसे लगते हैं बिल्कुल चूहे के बच्चे की तरह लगते हैं, छोटे से होते हैं. और अगर तुम देखो कभी काऊ का काफ देखो, जहां उसका जन्म होता है ना, वो नीचे गिरता है जमीन पे अपनी मदर के उससे निकल के, बैली से निकल के, और उसके आधे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद वो खड़ा हो जाता है, इधर उधर घूम रहा होता है. ह्यूमंस में तो many years it takes to look after that. So now more caring needed. Next. Okay. मैंने कहीं कुछ गड़बड़ की है ईयर लिखने में. मैं 4.4 पे था, और चाइल्ड बर्थ वाला जो है ना, ये दिस टुक 1.25 मिलियन ईयर्स. इससे पहले की स्लाइड में हम लोग 4.4 मिलियन ईयर अगो पे थे. This all process has taken 1.2 million years, and now we are at 3.2 million years. Okay, all right. So around 3.2 million years ago, now the human ancestor is called I think it has something to do with Australia. Australopithecus. पहले तो अपन कुछ और थे ना, आर्टिपिथिकस. अब अपन बन गए हैं ऑस्ट्रोडोपिथिकस. अब हम क्या है, हमारी क्या स्टेटस है? देखो, हमारा स्टेटस ये है कि हमारा वी ऑलवेज वॉक ऑन 2 legs, ऑलवेज ऑन 2 legs. फर्स्ट. सेकेंडली, हमारा ब्रेन जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया अभी.
वो ग्रे फ्रूट साइज का हो गया है। लेकिन चारों तरफ प्रेडेटर घूम रहे हैं, और भी स्पीशी डेवलप हो रहे हैं ना, हर तरफ प्रेडेटर। प्रेडेटर्स अबाउंड, मतलब बहुत सारे प्रेडेटर घूम रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इस प्रेडेटर्स की वजह से अब हमारी थिंकिंग को इंप्रूव करना पड़ेगा टू सेव आवर सेल्फ। ह्यूमन एंसेस्टर brain improves. Brain improves. Okay. And change of food allows jaw muscles to reduce. पहले क्या कर रहे थे, पहले जिस तरह का खाना खा रहे थे, जैसे जैसे अदर एनिमल्स को खा रहे थे या हार्ड कुछ खाना खा रहे थे, उसके लिए जरूरत पड़ रही थी जॉ मसल्स की, और उसकी वजह से ब्रेन का सारा ये माउथ जो है ना पूरा, यहाँ जॉ मसल्स थी बड़ी बड़ी, इधर कुछ स्पेस नहीं बच रहा था। तो जैसे जॉ मसल्स रिड्यूस होनी शुरू हुई, ब्रेन का डेवलपमेंट बढ़ गया। ब्रेन डेवलपमेंट is more. Okay. And this is around the time when the ice age start. Ice age started at around 2.3 million year ago, and at this point of time our brain size is now doubled. Brain size doubled. Okay. And this is, we are now called Homo habilis. We are now called Homo habilis. So what is Ice Age? Ice age is the time when the entire earth was covered with ice sheets. एक मूवी, इसके ऊपर 2-3 मूवी भी आ रखी हैं एनिमेशन की। एंड होमो हैबिलिस इज द फर्स्ट मैन, इट इज द फर्स्ट मैन। इट इज बिगर देन अर्लियर वर्जन्स, इट इज स्ट्रॉन्गर, एंड इट इज हंग्री। खाना नहीं मिल रहा है इसको। जस्ट लेट मी पुट अ मैसेज टू द नेक्स्ट क्लास, 9th वालों को थोड़ा सा डिले होगा। Because I want to complete this thing today. Okay. So, अभी बंदा भूखा है, हंग्री है, और हंटर नहीं बना अब तक। अभी स्कैवेंजर है, जहां जो मिलता है वो खा लेता है। स्कैवेंजर, राइट। ओके, अभी आगे चलते फटाफट। सो दिस इज द फर्स्ट मैन, होमो हैबिलिस। टू 2.3 मिलियन ईयर्स अगो तक हम पहुंच गए। ओके,
scavenger. Okay, and so 2.3 million years ago, Homo habilis learns to make tools. एक्चुअली क्या है, स्कैवेंजर बंदा है, कहीं कीड़े खा रहा है, मकोड़े खा रहा है, कोई पत्थर मारा होगा किसी इंसेक्ट के ऊपर, वो पत्थर टूट गया होगा बीच में से, उसने इसकी देखा होगा एज तो बड़ी इसकी टाइट है, बिल्कुल शार्प एज है, शायद से बाद में मरे हुए एनिमल्स को ऐसा काटने में काम आएगी, या उसकी हड्डियों को तोड़ के उसकी बोन मैरो को सक करने में काम आएगी। तो ये पहला टूल्स बनाना शुरू कर दिया इस बंदे ने। और कहाँ रहा है ये रह रहा है ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका। नाउ देयर आर फाइट्स फॉर फूड आपस में। So what happens is the weaker people die, stronger people remain. So now we are getting better and better version of our human ancestors. Okay, so for fight for food, no meat, खाना वहां वैसे ही कम है, ठीक है, so it is eating whatever it can, right? Now as a tool, see, just imagine this tool, monkey has all the fingers, same fingers होंगे monkey की, लेकिन to use tool you need, what do you need? A strong thumb. A strong thumb. अगर मेरा ये अंगूठा मजबूत नहीं होगा, थंब नहीं होगा, तो कैसे पकड़ूंगा? कुछ भी पकड़ने के लिए मेरे को थंब चाहिए स्ट्रॉन्ग, तो थंब स्टार्ट गेटिंग स्ट्रॉन्गर. Now scientists don't know what happened from 2 million years ago to 1.8 million year ago. No idea. बाकी उस वक्त की बोन वोन मिलनी नहीं किसी, कुछ भी. जो आगे की बोन मिली है साइंटिस्ट को, वो मिली है 1.8 मिलियन ईयर अगो, एंड दिस इज कॉल्ड होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस यानी कि ये बंदा बिल्कुल इरेक्ट होके चलता है. और अब क्या है, जब उनको नेक्स्ट जो उनको पता चला, साइंटिस्ट को जो मिला है, जो अब ये बंदा स्कैवेंजर नहीं है. स्कैवेंजर से क्या बन गया ये बंदा? अभी हंटर बन गया. और यहां आपस में लड़ रहे थे फूड के लिए, लड़ रहे थे, अभी हंटर है एंड टीम में काम करते हैं. टीम. Human ancestor can run longer than deer and eat it. हम लोग क्यों? क्योंकि हमारे शोल्डर नीचे हैं, टोर्सो लंबा है, हम ज्यादा दूर तक दौड़ सकते हैं. वाई? टोर्सो सबको पता नहीं क्या होता है, यहां से लेके यहां तक हिस्से को टोर्सो बोलते हैं. टोर्सो, लॉन्ग, लो शोल्डर and strong buttock muscles. Strong buttocks. Okay, so this is the reason. Now, और हम लोगों को क्या है, पसीना, हमारा पसीने से हम लोग गर्म नहीं होते. Sweat keeps us cool. Sweat keeps us cool. हो गया. Okay, now next. Okay, then what happens one day, accidentally
इन ड्राई लाइटनिंग, लाइटनिंग होती है ड्राई भी होती है, तो सबको पता है ना, कई बार वेट होती है कभी ड्राई ड्राई लाइटनिंग, ड्राई ग्रास कैचेस फायर। पहली बार फायर नजर आई ह्यूमंस को, या ऐसी फायर की धुन दिखी उनको, ठीक है, ऑलराइट। एंड देन फायर डिस्कवरी। अब फायर की डिस्कवरी धीरे धीरे, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स मस्ट हैव टेकन टू द ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फायर, हाउ टू मेंटेन दिस, हाउ टू कंट्रोल इट, एंड नाउ द फैमिली, नाउ व्हाट इज ही इज गेटिंग, fire for heat, light, etc. One day, meat falls in fire, but you can't waste food. Food है ही नहीं वहां पे, but food is vital. Cooked food taste better. और अब खाना को खाने में एनर्जी लग रही है कम. So now the saved energy will develop the brain. Saved energy from cooked food leads to better brain development, better brains, right? Okay, better brains हो गए. अब इनके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, so brain size is more. Now they have family. फैमिली में फाइट है. कौन बचेगा? जो दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर सके, अच्छे से कम्युनिकेट कर सके. तो हमारा वोकल कॉर्ड चला नीचे चला जाता है, यहाँ आ जाता है नीचे. And now with this extra depth, we can have more variety of sounds. We can communicate better. Fights, and that leads to communication. Communication. And after 3.3 million years of evolution, $200,000 years ago, we get our first real ancestor called Homo sapien. Homo sapien. Homo sapien can talk, communicate, do teamwork, make tools, and these tools only will finally make SpaceX rocket of Elon Musk and take people to space. Same tools. Journey began from there. And Homo sapien का मतलब क्या होता है दोस्तों? Wise man. This is our ancestor 200,000 years ago or 2 lakh years ago. Journey from 2 lakh year to the present day around 10,000 BC or 5,000 BC, जब कुरुक्षेत्र और ये सब रामायण महाभारत की कहानी है, that will take some time else. फिर एक बार ब्रेक लेंगे जब कभी पढ़ाई से, तब मैं लेके आऊंगा. ठीक है, तो ये इसके साथ ही ह्यूमन स्टोरी खत्म हो जाती है. यहाँ तक आके फिर बाकी बहुत कुछ हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से अब हम 3 दिन हो गए करते करते इसको. ओके, तो फर्स्टली गाइस, वाज इट वर्थ इट? टेल मी, कंफर्म करो. Yes, sir. सही था? You guys Yes, liked sir. it? हाँ, Yes, जिया, sir. जिया, Yes, क्या बाकी sir. लोग चुप हैं, क्या चक्कर है? चैट बॉक्स में बताओ मेरे को. चलो, टाइम मेरे पास कम है, दूसरी क्लास वेट कर रही है. ओके, सो डिड यू लाइक इट? वाज इट वर्थ इट? इंटरेस्टिंग? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है. आई वांट टू सी सम रिमार्क फ्रॉम एवरीबॉडी एंड देन वी कैन
एंड द क्लास। ओके, प्रभु ने कुछ मेरे को रिमार्क नहीं दिया अब तक, दे दिया, तस्मिया ने दे दिया, सिया ने दे दिया, जिया ने दे दिया, शिव बचा हुआ है, कौन कौन बचा हुआ है? चल, ऑल राइट गाइस, टुमारो वी कंटिन्यू आवर सेक्स इन एनिमल वाला चैप्टर, और हम ऐसे फटाफट चैप्टर होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने बता दी, अब बहुत आसान है, वो भी मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। चलो, ओके गाइस, गुड नाइट, वी मीट टुमारो, बाय बाय एवरीवन, बाय 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 बाय।